Hello friends, let's discuss about ideal solutions. What is solution? A homogeneous mixture of two or more substances is known as solution. For example, if we mix glucose into water, we get a homogeneous mixture. Here water is in excess known as the solvent, and glucose, which is present in less amount, is known as the solute. And it is a solution of solid into liquid. And here in this video we are going to discuss ideal solutions. Such solutions can be prepared only by dissolving, let's say, liquids into liquids. For example, if we dissolve benzene into toluene, that is so these two organic substances are liquids at room temperature. If we mix these two liquids, what happens? Let's see. So we have, let's say, benzene. Its volume is 100 ml. Similarly, the second liquid is toluene. Its volume is again 100 ml. Then what we do? We mix these two liquids here and we get a solution of this toluene into benzene or vice versa. Because here the volume of both liquids is equal, and we can say benzene is solvent or toluene is solvent. We have to specify it. By definition, any liquid can be taken as solvent because these two liquids are mixed into equal volume, equal amount. The volume of solution obtained is, that is 100 plus 100, that is 200 ml. Okay, please say V1 plus V2 is equal to V3, and V3 minus V2 plus V1 is equal to 0. Means there is no volume change. And this homogeneous mixture of these two liquids obey Rolle's law. Now what is the meaning? Okay, this solution obeys Rolle's law. It is very important. कोई भी solution जो Rolle's law को follow करता है, obey करता है, वो solution हमेशा ideal solution होता है. इसे हम ये कह रहे हैं benzene plus toluene. Their solution is an ideal solution. So there is no change in volume. Number two, there is no change in temperature also. Change in temperature is 0. It's very important, please. Change in temperature is 0. अगर ये दोनों लिक्विड्स यहाँ पर 25 डिग्री सी के ऊपर हैं, ठीक है, तो दोनों को मिलाने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसका तापमान भी 25 डिग्री सी है. देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, मींस देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी. मतलब जब इन दोनों लिक्विड्स को मिलाया गया उस टाइम ना तो हीट एनर्जी बाहर निकली ना ही एब्जॉर्ब हुई. देयर इज नो हीट चेंज during mixing of the two liquids. There is no volume change. Delta V is equal to 0. There is no volume change.
देयर इज नो वॉल्यूम चेंज। 100 ml बेंजीन है, 100 ml हमारे पास क्या है, टोलुइन है, दोनों बनाने पर क्या है 200 ml सोल्यूशन हमें मिलता है, वॉल्यूम चेंज भी 0 है। ओके, पहला हमारे पास क्या है, द सॉल्यूशन ओबेज रोल्स लॉ। पहला हमारे पास क्या है, रोल्स लॉ। रोल्स लॉ के अनुसार ये सॉल्यूशन क्या है, काम करता है। सो देयर इज अ चेंज इन एंट्रोपी, देयर इज अ चेंज इन फ्री एनर्जी। वो वहां पर क्या है, यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ जाती है। डेल्टा एस क्या है, क्योंकि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर ये बेंजीन के, इनको क्या है 100 ml स्पेस मिलता है घूमने के लिए। वही बात यहां पर है, लेकिन मिलाने के बाद जो वॉल्यूम है वो 200 ml हो जाता है। यहां पर आप कह सकते हैं कि रैंडमनेस बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, डिसऑर्डर बढ़ जाता है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है, हम जानते हैं यहां डेल्टा जी, द फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस, राइट। डेल्टा एच 0 है, इसको क्या है डेल्टा जी, ये क्या है यहां पर, ये देखिए प्लीज, ये डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव आएगा यहां पर जब दो लिक्विड्स को मिलाते हैं। डेल्टा एस क्या देते हैं, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। यहां पर फ्री एनर्जी और एंट्रोपी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें क्या हमें प्रैक्टिकली निकालनी पड़ती है। लेकिन ये जो तीन चीजें हम यहां पर एकदम से सॉल्यूशन को देख के बता सकते हैं, क्या कि वॉल्यूम हमने माप लिया, वेरी इजीली, फिजिकल चीज है ये, कोई चेंज नहीं है वॉल्यूम में, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, डेल्टा एस इसका मतलब क्या है 0 है। आप यहां पर क्या करते हैं कि सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करता है या नहीं करता है, इसको चेक करने का हमारे पास क्या तरीका है कि यहां पर प्रैक्टिकली सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। व्हाट वी डू, वी मेजर द vapor pressure of the solution obtained on mixing these two liquids practically. P solution, that is your observed value, practically measured जो solution का vapor pressure है। Then P solution, okay, calculated with the help of Rolle's law formula और Rolle's law formula equation। सिंपल बात है हमारे पास, P solution is equal to PA not XA plus PB not XB, राइट। देखिए हमें कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये बेंजीन है, ठीक है, 100 ml गैस क्या है, टोलुइन है, और ये हमारे पास दोनों क्या है 20 डिग्री सी पर है। यहां पर इनका जो वेपर प्रेशर है ये PA नॉट है, इसका वेपर प्रेशर ये PB नॉट है। देखा, हमें पता है इनकी डेंसिटी पता है, दोनों की वॉल्यूम पता है हमें, तो इनका मास भी निकाल लेंगे। ठीक है, कि दोनों का मास क्या है, तो मास से क्या है, इन दोनों का हमें क्या है नंबर मोल जो पता होंगे। जब नंबर ऑफ मोल पता है, दोनों का मोल फ्रैक्शन भी पता है। So please, you see here, it's very important. What we are doing? We are mixing 100 ml of benzene and toluene, right? In order to get 200 ml solution, we measure the vapor pressure of the solution practically. Let's say this is the value. Okay. And so क्या करेंगे, आपको आगे कुछ बोलिए, 1 means practically measured vapor pressure of solution। 1 का मतलब यहां पर है 2, right? Let's say P solution 2 means vapor pressure theoretically calculated by using Rolle's formula। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहां पर कि ये अलग से हमारे पास बेंजीन है, टोलुइन है, और जब ये यहां पर अकेले है इस टेम्परेचर पर, इनका वेपर प्रेशर क्या है, ये PA जो यहां पर ये पता है हमें, ठीक है, और यही पता है, हमें पता होता है कि वेपर प्रेशर हमारे पास स्टेबल होती है, एक बहुत ज्यादा डेटा हमारे पास है, अलग अलग लिक्विड्स का अलग अलग टेम्परेचर पर हमें वेपर प्रेशर दिया होता है, लिटरेचर में दिया होता है, वहां से वैल्यू अपनी दोनों यहां से देख लेंगे, दोनों वैल्यू PA नॉट एंड PB नॉट लिटरेचर से जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है।
एक्स ए एक्स बी, जो कि दोनों का हमें वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, वहां से इनका मास निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे और मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो इन चारों फैक्टर्स की वैल्यू यहां पर पुट करके क्या आ जाएगा, वी ऑब्टेन द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बाय यूजिंग रोल्स लॉ फॉर्मूला। इफ this P solution 1 is equal to P solution 2, right? We say solution obeys Rolle's law. यदि प्रैक्टिकली ऐसा पाया जाता है, वास्तव में ऐसा होता है कि P solution 1 is equal to P solution 2, P solution 1 means the vapor pressure determined practically, P solution 2 the vapor pressure calculated by using Rolle's law. अगर दोनों वैल्यूज बराबर आती हैं वेपर प्रेशर की, हमारा सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करता है और ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। अगर ये ऐसा नहीं होता है प्लीज क्या होगा, अगर ये ऐसा नहीं है कि P solution 1 is not equal to P solution 2, then solution does not obey Rolle's law and it is not an ideal solution. अब कोई भी सॉल्यूशन जो बनाएंगे वो आइडियल क्यों होता है, ये तो हमने बताया कि आइडियल कब होगा कि ये रोल्स लॉ को ओबे करेगा, ठीक है, राइट। और जब सॉल्यूशन बनाएंगे वॉल्यूम चेंज जीरो होगा, एंथैल्पी चेंज जीरो होगा, टेंपरेचर चेंज जीरो होगा, ये सारी चीजें क्या एकदम से हम देख सकते हैं वेरी इजीली कि वॉल्यूम में चेंज आया नहीं आया, ठीक है, टेंपरेचर चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये चीजें देखना बड़ा आसान काम है। फिर कोई भी सॉल्यूशन किन कंडीशंस में या कौन सी बातें वहां पर होनी चाहिए कि वो एक आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, कोई भी दो लिक्विड्स कब बनेगा, लेट्स सी द कंडीशंस, और उसका रीजन क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन क्या है वो आइडियल है या नॉन आइडियल है। प्लीज देख लीजिए हमारे पास के, हमारे पास देखिए ये पहला लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल को हम ए से दिखाएंगे कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है, बोलते हैं इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। बीबी ये हमारे पास क्या दूसरा लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम बी से दिखा रहे हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। तो यहां पर the two liquids will form ideal solution if they have similar chemical behavior। तो इनका केमिकल बिहेवियर दोनों का लगभग सिमिलर होना चाहिए, इनका केमिकल नेचर दोनों का लगभग होना चाहिए। जैसे हमने कहा था कि बेंजीन और टोलीन का केमिकल बिहेवियर नेचर लगभग बराबर है, इसलिए उनका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बनता है, राइट। तो जब क्या होगा देखिए प्लीज, दोनों लिक्विड्स को बनाएंगे फिर क्या होगा, यहां पर ए बी ऐसे लेंगे ना, ए बी ऐसे हमारे पास क्या ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स कर जाते हैं, तो क्या होगा ए बी के बीच में जो भी इंटरेक्शन है वो ए और बी इंटरेक्शन के बराबर होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। जब ऐसा होगा तभी सॉल्यूशन आइडियल बनेगा। लेकिन अगर ये जो इंटरेक्शन है ए बी इंटरेक्शन यदि ये ए और बी से ज्यादा है या कम है तो सॉल्यूशन आइडियल नहीं बनेगा। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका शेप और साइज भी लगभग क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। Shape and size of the molecules of the two liquids which we are going to mix should be almost similar, same, उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस होंगी वहां पर क्या तो सॉल्यूशन आइडियल बनेगा। और एक बात और है, कोई भी सॉल्यूशन तभी आइडियल होता है जब वो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या है कि वहां पर एक जो लिक्विड है वो ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, दूसरा काफी कम मात्रा में होना चाहिए। अगर हम सॉल्यूशन को क्या डाइल्यूट से कंसेंट्रेशन की तरफ जाएंगे ना, कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है द सॉल्यूशन विल बी लेस एंड लेस आइडियल। कि सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन बढ़ाने से उसका जो आइडियल नेचर है वो लगातार डिक्रीज करता है। So this is about the ideal solutions and how we can obtain the ideal solutions. Okay, please. Thanks. Namaskar.